So let's start with today's themes analysis from the Indian newspaper. सबसे पहला है इन हिस्टोरिक लीप इंडियन एस्ट्रोनॉट हेड्स टू ISS. Start of Indian Human Space Program, says Subhanshu Shukla, as X-04 mission is launched from Kennedy Space Center, US, with a 4 crew member to spend 14 days in orbiting lab. So बेसिकली इस न्यूज़ के जो की हाइलाइट्स हैं वो ये है कि इसके जो ग्रुप कैप्टन है वो शुभांशु शुक्ला है एंड ही बिकम्स द फर्स्ट इंडियन टू हेड टू ISS आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984. So he is the first Indian to head ISS since he is the group captain. He is part of the X-4 mission launched from NASA's Kennedy Space Center, Florida on May 29. So if we talk about the mission details, so there are 4 members in the crew including Subhanshu Shukla, who is from India, Peggy Whitson, commander, who is the commander of, he is from USA, Slaosz, who is from Poland, and Tibor Kapu, who is from Hungary. These are the names. So in this case, Dragon Crew capsule is used for the launch. So crew will spend around 14 days abroad in the mission, conducting research and scientific experiments. So what is the significance for India? So this marks a historic milestone in India's human space journey and reflects India's growing global partnership in space, symbolic of India's aspiration for Gaganyaan and deeper space exploration. We all know कि India is about to launch Gaganyaan space mission, जिसमें वो humans को भेजने की तैयारी कर रहे हैं. So this represents a leap towards international collaboration and prestige in space science. UPSC के केस में इसका रेलेवेंस क्या है? अब आपको सबसे पहले तो जो भी मिशंस हैं, जो कंट्रीज़ जो भी मिशंस लॉन्च कर रही हैं फॉर एक्सप्लोरेशंस एंड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन द स्पेस, उस पर आपको थोड़ा सा नोट्स बनाने पड़ेंगे, बिकॉज ये स्पेस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस, ये 2 क्राइटेरिया हैं अभी प्रेजेंटली जिस पे UPSC काफ़ी फोकस कर रहा है. तो उसके एस्पेक्ट में आपको ये भी ध्यान देना है कि इंडिया ने कौन सी सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं अभी तक, सैटेलाइट्स कौन सी लॉन्च की हैं, कौन से मिशंस अभी तक लॉन्च हुए हैं, ठीक है, और ये करंट मिशंस होने चाहिए, ठीक है, करंट मिशंस होने चाहिए, अनमैन्ड मिशंस हैं ये, ठीक है. अभी तक कोई मैन्ड मिशन नहीं है, यानी कि कोई ऐसा मिशन नहीं है जिसमें ह्यूमंस ट्रैवल करें. इंडिया ने अभी ऐसा कोई मिशन लॉन्च नहीं किया, बट प्रिपरेशन है गगनयान को लॉन्च करने की. सो इस पे आपको थोड़ा सा नोट्स बनाना पड़ेगा, बिकॉज ये 2025 में भी आया था, 2024 में भी स्पेस टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, डिफेंस में भी पूछे जा रहे हैं. सो जो भी न्यू डेवलपमेंट्स है, क्यों करंट अफेयर्स आपको कवर अप करना ज़रूरी होता है, ये इसीलिए ज़रूरी होता है बिकॉज जो UPSC का पेपर है अगर आप देखोगे, दैट इज़ बीइंग मोर कंसेप्चुअल राइट, वो आपका विजन IAS के करंट अफेयर्स को कवर अप करने से नहीं होगा.
सो जो लोग अभी इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन में है वो अपना आइडिया यहाँ से ले सकते हैं कि उनको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, किन न्यूज़ टॉपिक्स को उठा के हम कहाँ से क्या ड्राइव कर सकते हैं फॉर यूपीएससी, ये इम्पोर्टेंट होता है। सो ये इसी का कंटिन्यूएशन है। क्वालिफाइड चेयर शुक्ला's paid flight to ISS will provide insight on human space flight. So at noon on June 25 IST, India's Subhanshu Shukla lifted off with 3 other astronauts from NASA's Florida spaceport to the International Space Station as part of Axiom 4 mission. So this is a commercial mission. This is the first time an Indian has gone to orbital space since Rakesh Sharma in 1984. If the Dragon crew capsule docks successfully with the ISS on June 26, Mr. Shukla will also become the first Indian on board ISS. So over the next 2 weeks, he and ISS crew will perform a suite of experiments carried by the Axiom 4 mission, including 8 from the Indian Space Research Organization. So there are a suite of experiments, जिनमें से 8 experiments जो है वो ISRO के भी हैं. So Mr. Shukla is among the leading candidates to fly in India's maiden human space flight mission, Gaganyaan, currently slated for 2027. So this Gaganyaan would be slated in 2027. For now, the Department of Space has not articulated the reasons for spending rupees 548 crore to buy Mr. Shukla's seat on Axiom 4 against the backdrop of rupees 20,200 crore budget for Gaganyaan. Mr. Shukla's paid flight to ISS, packaged along with advanced training for him and backup crewmate Prashant Nair, will give India considerable insight into human space flight and how it is coordinated ahead of mounting its own astronaut expeditions regardless of money spent. So जहाँ तक मुझे लगता है कि बेसिक जो रीज़न है वो ये कि 2027 में अगर गगनयान जो आपका मिशन है अगर वो उसे लॉन्च किया जाता है तो कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन होगा फ्रॉम इंडिया वो आपको गाइड कर सकेगा कि किस तरीके से हम अपने मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर सकते हैं और सेफली वापस आ सकते हैं. सो इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड दैट ही विल गाइड द मिशन ऑफ गगनयान. सो आई थिंक दिस इज़ द मेन रीज़न. Space flight has changed considerably between Mr. Sharma's and Mr. Shukla's flights. The stakes today are multidimensional and more demanding. Axiom is a private entity contracted with NASA and SpaceX. So it is a private entity which sells seats to commercial missions to ISS. वैसे तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इस न्यूज़ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. हाँ, ये आप याद कर सकते हो कि शुभांशु शुक्ला जो है वो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के लिए ये आ सकता है कि वो इज़ द फर्स्ट इंडियन टू टेक ऑफ टू ISS. ठीक है, आफ्टर द लैंडिंग एंड ऑल एवरीथिंग. तो वो शुभांशु शुक्ला है आफ्टर शर्मा. तो ये आप मेंशन कर सकते हो. बट जो मेन जिस्ट है वो है स्पेस टेक्नोलॉजी. इसके पीछे का जो मेन जिस्ट है, तो ये जो करंट अफेयर्स है, ये जो न्यूज़ है, ये इसी तरीके से, क्योंकि यूपीएससी ये कभी नहीं पूछता है कि कौन गया, कौन पहला पर्सन हुआ, कौन पहला इंडियन हुआ. नो, दे विल नॉट आस्क. दिस इज़ नॉट द टाइम टू आस्क. ये इतना मतलब इस समय ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते. वो आपसे सिर्फ इतना पूछेंगे कि स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मिशंस बताओ. ये मिशन किस कंट्री का. 3 कॉलम क्वेश्चंस आपको उठा के दे दिया. फॉर एग्ज़ाम्पल Axiom 4 ही दे दिया, AX4 ही दे दिया. आप उसमें क्या कहते हैं लिख दिया कि इट इज़ अ सैटेलाइटिक मिशन. ठीक है, और ये कह दिया कि नासा ने लॉन्च किया. तो ये वाली बात तो गलत हो गई ना. तो अगर आपको पता होगा कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है तो आप रॉन्ग मार्क कर सकते हो.
फिर सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट, इस तरीके से 3 कॉलम क्वेश्चंस बहुत चल रहे हैं, तो आप इस तरीके से नोट्स अपने प्रिपेयर कर सकते हो. सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. ठीक है. सो दिस इज़ नॉट अ सैटेलाइटिक मिशन, दिस इज़ अ ह्यूमन गाइडेड मिशन. ओके. यहाँ पे ह्यूमंस ट्रैवल करेंगे. दिस इज़ नॉट अनमैन्ड, दिस इज़ अ मैन्ड लॉन्च व्हीकल. सो इनेबलिंग वोटिंग राइट्स फॉर माइग्रेंट्स, दिस इज़ द नेक्स्ट टॉपिक. अच्छा, उसके अलावा मेंस के पर्सपेक्टिव से आप क्या स्पेस टेक्नोलॉजी में कर सकते हो. तो जीएस पेपर 3 में जो है आपका वो डेवलपमेंट्स इन स्पेस, आप उस पर नोट्स, अपने कंसेप्चुअल नोट्स बना सकते हो. ओके. इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ स्पेस इन स्पेस सेक्टर क्यों इम्पोर्टेंट है. ठीक है. क्यों ये जो मैन्ड मिशन है क्यों इन्हें कैरी ऑन करना इम्पोर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंस ये होल्ड करते हैं. तो ये सब इम्पोर्टेंट है. ओके. सो बेसिकली इसमें की इश्यूज़ जो इस वाले टॉपिक में हाईलाइट किए गए, इनेबलिंग वोटिंग राइट्स फॉर माइग्रेंट्स, इसमें की इश्यूज़ जो हाईलाइट किए गए हैं वो ये कि बिहार हैज़ वन ऑफ द हाईएस्ट आउट माइग्रेशन रेट्स. सो वोटर टर्नआउट इन बिहार इज़ अराउंड 56% लोअर देन द नेशनल एवरेज. नेशनल एवरेज जो है वो 66% है. ओके. सो 56% लोअर है ड्यू टू माइग्रेंट्स इनेबिलिटी टू रिटर्न होम टू वोट. सो 2021 माइग्रेशन रेट इन इंडिया वॉज अराउंड 28.9%. ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है. So 85% of migrants work in the informal sector, often without permanent residence or address proof. चैलेंजेस क्या हैं इसमें जो एड्रेस किए गए चैलेंजेस. सो देयर इज़ नो कॉन्क्रीट मैकेनिज्म फॉर माइग्रेंट वोटिंग येट डिस्पाइट EC's पायलट एफर्ट. डिफ़िकल्टी इन आइडेंटिफाइंग माइग्रेंट्स, कोड ऑफ कंडक्ट इशूज़ इन माइग्रेंट्स होम कंस्टिट्यूएंसी, एंड लॉजिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स भी हैं. अगर देखा जाए तो ये चैलेंजेस में आते हैं लॉजिस्टिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स, दैट लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ RVMs, सॉरी EVMs. प्रपोज्ड सोल्यूशन क्या इसमें दिया है, सॉरी RVMs नॉट EVMs, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. दिस शुड बी इनिशियली देन REVMs. प्रपोज्ड सोल्यूशंस क्या क्या बताए गए हैं कि स्टैट्यूटरी हॉलीडे इन्फोर्समेंट होना चाहिए इस केस में, एंड टू इंश्योर दैट वर्कर्स गेट टाइम टू रिटर्न होम टू वोट. ठीक है. ये सबसे पहला बोला गया कि मतलब एक वाइबल हॉलीडे देना, ये नहीं कि जिस दिन वोट देना उसी दिन छुट्टी दी जाए. सो स्पेशल ट्रांसपोर्ट और बस सर्विस भी होनी चाहिए ऑन द पोलिंग डे और द ईव ऑफ इट, ये भी होना चाहिए. एंड रिमोट वोटिंग मशीन्स जो हैं वो भी कायदे से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए. सो 2023 में पायलट कवर्ड अराउंड 72 कंस्टिट्यूएंसीज RVMs, एंड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न स्टिल एग्जिस्ट, क्योंकि अभी भी ये जो 72 कंस्टिट्यूएंसीज में अभी भी जो ये लाया गया ना, ये अभी भी ये आंकड़े काफ़ी कम हैं. ठीक है. So the political parties, they objected to this project. They said they were ambiguity over its functioning, means they were suspicious of the functioning. So advanced registration, if migrants register months in advance, EC can plan accordingly. So postal ballots for migrants already used by service voters, उसको भी enhance करना चाहिए. Can be expanded to casual or seasonal migrants.
मिक्स्ड अप्रोच और रिकमेंडेशन इस आर्टिकल में क्या दिया गया है कि यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज़ लाइक हॉलीडे, RBMs, पोस्टल बैलेट्स, इन सबको यूज़ कर सकते हैं एंड दिस कैन इंश्योर इंटर एंड इंट्रा स्टेट माइग्रेंट्स कैन that they can vote. So this requires fine tuning, consultation and support mechanism. अब यूपीएससी के केस में आप क्या कर सकते हो कि गवर्नेंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, रोल ऑफ ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस, माइग्रेंट्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और GS पेपर 1 में आपका सोसाइटी जो है, सोसाइटी का जो टॉपिक होता है उसमें माइग्रेशन पैटर्न एंड इश्यूज़ क्या क्या है ये आप डिस्कस कर सकते हो। मतलब इसमें आप एक अपने व्यूज़ बना सकते हो, एक बैलेंस्ड व्यू बना सकते हो। अगर आपको आंसर चाहिए इस टाइप के टॉपिक्स पे तो मैं एक सैम्पल आंसर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट कर दूँगी। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी इंस्टाग्राम अकाउंट की, और साथ में बार कोड भी प्रोवाइड कर लूँगी जिससे कि आप उसको स्कैन करके प्रोफाइल तक पहुँच सके। सो आई कैन प्रोवाइड यू विद द आंसर राइटिंग, वो भी मैं आपको दे सकती हूँ, ताकि आपको पता होना चाहिए कि एक बैलेंस्ड अप्रोच कैसे रखना है। अब बैलेंस्ड अप्रोच के साथ साथ वे फॉरवर्ड भी होना चाहिए, यानी रिकमेंडेशंस भी होनी चाहिए। So next is GST Council set to discuss having fewer items and 12% slab. The agenda of Goods and Services Tax Council at its next meeting is likely to be held in July. Will include deliberations on minimizing the 12% tax slab and also finalizing the tax treatment on service intermediaries which provide the sector relief worth thousands of crores according to the informed sectors. So one of the main agenda items as a part of overall simplification and weight rationalization effort is what to do with 12% slab. An official aware of the development told the Hindu. One of the internal recommendations was to minimize the slab or maybe even to do away with it entirely. Okay. It is stipulated that GST Council meet every quarter or 3 months, but the last meeting was held in 2024 December. So ये इसी का continuation है. सर्विस इंटरमीडियरीज के बारे में बताया गया है इसमें. So the Hindu has also learned that other major items on agenda of GST Council would be the taxation of service intermediaries. Currently, service intermediaries are taxed around 18% even when they provide service to companies abroad. So this is likely to be removed. It is improbable that GST Council will completely abolish the 12% tax slab, said Saurabh Agarwal, who is a tax partner at EY India. So they are likely to gradually reduce the number of items in this category by shifting them to 5% slab. Some items are currently taxed at 18%, may be moved to 12% slab. अब ये जो सर्विस इंटरमीडियरीज हैं, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये कौन है, ठीक है, इनका रोल क्या होता है, और ये जो टैक्स रिजीम चेंज आ रही है जिसमें शिफ्ट किया जा रहा है, स्लैब रिडक्शन किया जा रहा है, आइटम्स का रिडक्शन किया जा रहा है, 12% 18% स्लैब में इनको शिफ्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ये सब आपको इस तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा पूरा न्यूज़पेपर, तब जाकर आप कहीं आंसर राइटिंग, आंसर फ्रेमिंग आप जान सकते हो. So this adjustment would reflect a change in consumer behavior, he said, since rising per capita income meant that many products that were since considered discretionary, such as toothpaste and soap, have become everyday necessities. So however, other tax experts say that moving items from 12% to 5% might not always be a good thing for the manufacturers. At 12%, they are eligible for input tax credit, which will likely to be revoked if they are moved to 5%. This means that manufacturers would not get the credit for the tax
they pay on inputs. So GST काउंसिल भी इम्पॉर्टेंट है, ये एम लक्ष्मीकांत में आपको चैप्टर मिल जाएगा। और उसके साथ साथ इन टैक्स रेट डिफरेंट, ये जो टैक्स रेट दिए हुए हैं इनका क्या, इनमें क्या आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी कभी भी कुछ भी पूछ सकता है कंसेप्चुअली। सो नेक्स्ट इज द एक्सेस ऑफ अपहेरल इन द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। अब ये बेसिकली ये जो थीम है ये बहुत समय से चल रहा है कि ये जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, उसको कैसे एड्रेस करना है, ये सब चीज़ें बहुत पहले से ही चल रही हैं, राइट। तो ये आर्टिकल में मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि व्हाट इज़ द इमर्जिंग जियो पॉलिटिकल एक्सेस। सो द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट अमंग ईरान, रशिया and China. These three are termed as the axis of upheaval. इन्हें कंसिडर करते हैं एक्सेस ऑफ अपहेवल। सो एम क्या है इनका? टू काउंटर यूएस हेजेमनी, नाटो इन्फ्लुएंस एंड वेस्टर्न डोमिनेंस इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, एग्जाम्पल IMF, वर्ल्ड बैंक एंड स्विफ्ट। तो स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट्स के बारे में क्या बोला गया है कि ईरान रशिया डिफेंस एंड टेक पार्टनरशिप है इनकी। चाइना's रोल क्या है? डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वाया BRI एंड इन्फ्लुएंस इन एनर्जी डिप्लोमेसी, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एंटी वेस्ट नैरेटिव्स एंड रीजनल असर्टिवनेस। कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के बारे में भी इसमें बात की गई है कि गाज़ा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात किया गया है, एंड रशिया यूक्रेन वॉर इज सीन एज इंटरकनेक्टेड फ्लैश पॉइंट्स। सो रेड सी एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बिकमिंग द स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट्स ड्यू टू द ऑनगोइंग मैरीटाइम थ्रेट्स। और ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। सो इसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं ये लोग डिफरेंट आर्टिकल्स के माध्यम से। अब इस केस में इंडिया का डिप्लोमेटिक स्टैंड क्या है या होना क्या चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया है। सो इंडिया मस्ट परस्यू स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी एंड अवॉइड साइडिंग विथ पोलराइज्ड ब्लॉक्स, एंड इंडिया इज़ ऑलरेडी डूइंग दैट बिकॉज नॉन अलाइनमेंट की जो स्ट्रैटेजी है हमारी। सो कंटिन्यू द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड मल्टी अलाइनमेंट। व्हाट इज़ मल्टी अलाइनमेंट? यू शुड ऑल्सो नो दैट। आपको इस पर नोट्स बनाने चाहिए। मल्टी अलाइनमेंट क्या है? दिस इज़ अ न्यू टर्म। मल्टी अलाइनमेंट एंड नॉन अलाइनमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? सो बैलेंस रिलेशंस विद यूएस इज ईरान एंड इसराइल एंड रशिया ऑल्सो, इसके बारे में बात की गई है। अब जीएस पेपर 2 के केस में ऑलरेडी वी ऑल नो कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका रिलेवेंस है कि इंडिया को डिप्लोमेटिक टाइज कैसे रखने चाहिए, अपना ट्रेड कैसा होना चाहिए, ठीक है, पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इन टाइप के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं बॉर्डर लाइक सर्कमस्टांसेस, उसमें इंडिया की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ठीक है, और वेस्ट एशिया में कैसे उसका स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या फॉरेन पॉलिसी उसे कैरी ऑन करना चाहिए, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने ऑलरेडी इसमें इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी छप चुके हैं। वेस्ट एशिया में जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल्स छप चुके हैं, तो ऑलरेडी उसमें जस्ट डिस्कस हो चुका है। बस ये पॉइंट लाने का था कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मेंस का या एसे राइटिंग का या एथिक्स राइटिंग का एक एस्पेक्ट बनाता है, तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और रेड सी के बारे में भी मेंशन दिया हुआ है। तो अगर ये चोक पॉइंट्स इफ़ेक्ट होते हैं ड्यू टू वॉर और समथिंग, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि क्या वहाँ पर मतलब पॉसिबल डिज़ास्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस क्या हो सकते हैं, आपको ये सब मालूम होना चाहिए। आप मालूम क्या मतलब यू शुड मेक नोट्स आउट ऑफ इट, रिसर्च करिए थोड़ा, क्योंकि अगर आप अभी से ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करेंगे तो जाके ही आप अपना आगे आंसर राइटिंग में या एक पॉइंट ऑफ व्यू बना पाओगे। और हमेशा याद रखना, योर पर्सनल व्यू डू नॉट मैटर इन आंसर राइटिंग।
एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए, एवरीथिंग विद प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है. व्हाट आर द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट एंड व्हाट आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इट. सो उसके अलावा एक वे फॉरवर्ड रखना चाहिए, ठीक है. वे फॉरवर्ड यानी सोल्यूशन क्या होना चाहिए उस चीज़ का, या आगे कैसे किस तरीके से बढ़ना चाहिए इंसान को या इंडिया को, जिस भी एस्पेक्ट में आंसर पूछा गया है. तो इस तरीके से आंसर फ्रेमिंग होती है. अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं एक सैम्पल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट कर दूँगी. आई एम सेइंग इट अगेन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ लोफ्टी कंसेप्ट, अ गवर्नर एंड अनवांटेड कंट्रोवर्सी. सो बेसिकली यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात की जा रही है. व्हेन द गवर्नर ऑफ केरला डिस्प्लेड अ पिक्चर ऑफ भारत माता एज एट एन ऑफिशियल इवेंट. So state government objected, arguing the image has not been recognized as an official national symbol and should not be used in government events. अब इसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ क्या हाईलाइट किए गए हैं, दैट भारत माता इज़ नॉट एन ऑफिशियल symbol of Indian state, unlike the national flag or emblem. Constitution or any law does not recognize Bharat Mata as the national symbol, and governor is constitutionally bound to act on the aid and advice of the Council of Ministers. Article 163. आर्टिकल 163 को आप देख लीजिएगा. गवर्नर, जो गवर्नर की पावर्स है, फंक्शंस हैं, ठीक है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए. ये पॉलिटी में चैप्टर है और आप उसको अच्छे से रीड करिए, नोट्स बनाइए. ना व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नर, ये भी इसमें मेंशन है. मस्ट अपहोल्ड constitutional neutrality, cannot use unrecognized symbols in official events, and cannot act independently or promote partisan ideologies. If we talk about the historical significance of Bharat Mata, the concept was popularized by Bankim Chandra, Sister Nivedita, and Rabindranath Tagore in 1905. This became a symbol figure in the Indian freedom movement. So represented unity and national identity, not legally codified. This means that this was not legally codified. अब प्रीलिम्स में तो आपका जो गवर्नर है चैप्टर वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसमें जो आर्टिकल्स आ जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. उसके अलावा जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें गवर्नर का जो रोल्स है, पावर्स एंड फंक्शंस हैं. फेडरल स्ट्रक्चर में सेंटर स्टेट रिलेशंस, ये भी चैप्टर आपका दिया हुआ है इंडियन पॉलिटी में. एंड ऑल्सो issues related to constitution, morality and public function protocol. So ये आपको मालूम होना चाहिए. इस पे आपको कंसेप्चुअल नोट्स बनाने चाहिए. So next is chemotherapy drugs made by Indian firms fail quality test, the study shows. So vital chemotherapy drugs used around the world have failed quality test, leaving cancer patients in more than 100 countries at a risk of ineffective treatments and fatal side effects, as said by the Bureau of Investigative Journalism, TBIJ. Drugs in question from the backbone of treatment plans for numerous common cancers, including the breast and ovarian cancers and leukemia. Over the past 6 years, they have been shipped to countries such as Nepal, Ethiopia, US, UK and Saudi Arabia. So the test findings come from a study by researchers at University of Notre Dame in US, who analyzed around 189 samples. Of various cancer drugs. So about 1/5 of them, they failed.
So worst performing drug in the study is made by the Indian manufacturer Venus Remedies. All 8 samples of the company's cyclophosphamide product failed. So Venus Remedies told TBIJ that the test results were not scientifically plausible, given the company's validated manufacturing systems and quality controls. The manufacturer's storage conditions in supply chains which can impact the drug quality might have affected the researchers' test quality. However, the absence of similar quality issues across the entire data set suggests this is not the case. So, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट की गई हैं. अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यूपीएससी के एस्पेक्ट में क्या है, ये आपको ध्यान देना है. कुछ लैब टेस्ट हुए हैं यहाँ पर, जितने भी जो ड्रग मेकिंग कंपनीज़ हैं उनके, और इसमें यूपीएससी के रिलेवेंस में हम क्या ड्राइव आउट कर सकते हैं, क्या टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ. तो सबसे पहला तो ये कि इश्यूज़ दैट आर रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी बॉडीज़. जो रेगुलेटरी मेजर्स है उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग है और ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है. साथ में जीएस पेपर 3 के बारे में बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, पब्लिक हेल्थ, बायोटेक एंड ड्रग सेफ्टी. आप इन सब के उस पर आप जो भी है रिसर्च एंड फाइंडिंग्स आप नोट्स बना सकते हो कि क्या अभी तक सिनेरियो रहा है इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ का, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का. तो इस केस में इंडिया का ग्लोबल रोल क्या है कि बेसिकली इंडिया इज़ नोन एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, सप्लाइंग अफोर्डेबल जेनरिक्स to LMICs, that is low and middle income countries. So this kind of repeated lapses and failures in the policy implementation system or the transparency, this may impact India's pharma exports, bilateral ties and public health diplomacy. So next topic is strike setback Iran's nuclear sites did not destroy them, claims US intel. So the report says that the strike sealed off entrances to some facilities without destroying the underground buildings, while the Trump insists nuclear sites in Iran are completely destroyed. The Islamic Republic says its nuclear facilities are badly damaged. So ये क्लेम कहीं ना कहीं हो रहा है. यूएस का इंटेल बता रहा है कि कोई ऐसा हादसा, मतलब कोई मेजर जो है वो डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, बट जो ट्रम्प हैं वो कह रहे हैं, ही इज़ इंसिस्टिंग दैट द न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान आर completely destroyed. So a classified preliminary US intelligence report has concluded that American strikes on Iran set back Tehran's nuclear program by just a few months rather than destroying it as claimed by US President Donald Trump. So US media on Tuesday cited people familiar with the Defense Intelligence Agency findings as saying the weekend strikes did not fully eliminate Iran's centrifuge or stockpiles of enriched uranium. So the aerial bombardments and missile strikes sealed off the entrances to some facilities without destroying the underground buildings, according to the report. US media coverage of the IA assessment appeared to anger Mr. Trump, who insisted news outlets like CNN and the New York Times were out to demean the military strike by saying it only set back Iran's nuclear program by a few months. सो दिस इज़ द कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन. वेदर इसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, उतना नहीं लेना देना है, बट येस आप जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो. साइंटिफिकली जो इसमें फिजन एंड फ्यूजन है उस एस्पेक्ट में आप नोट्स बना सकते हो और
न्यूक्लियर इनरिचमेंट वेपन्स बनाने के लिए कितना % होना चाहिए, ये मैंने अपनी वीडियो में बताया है और ये आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। यूरेनियम का जो इनरिचमेंट होना चाहिए वो कितना % अचीव होना चाहिए, हाउ मच % शुड बी अचीव टू डेवलप वेपन्स। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स जो है, वेस्ट एशिया में जो डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको नोट्स बनाने होंगे। So next is rural demand likely recovered. So domestic price situation remained pending with headline inflation staying below the target of for the 4th consecutive month in May, while agriculture showed broad-based increase in production across the major crops during 2024 to 25. बेसिकली ये एक प्रोविजनल एस्टिमेट्स बताया जा रहा है दैट वाज रिलीज्ड इन मे दैट रीअफर्म द ग्रोथ एट 6.5% इन 2024 विद अ सिग्निफिकेंट सीक्वेंशियल पिकअप इन Q4. सो दीज आर जस्ट, अब इसमें जो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये कौन पब्लिश करता है ये आपको मालूम होना चाहिए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर आपको नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। इसका इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या रिलेशन है इसका इन्फ्लेशन से, ये इम्पॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट इज NSE फ्यूचर्स टू hedge लॉस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस। सो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज is set to unveil a new security called electricity futures in order to hedge losses due to electricity price fluctuations. This will allow power buyers, sellers and traders and retailers to manage price risk. The electricity supply and the distribution market is bundled and this product will help them unbundle, NSE said. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा सा नोट्स बना लीजिएगा कंसेप्चुअल बेसिस पे। सो देयर विल बी नो डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्कॉम्स, जनरेटर्स, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज कैन लॉक फ्यूचर प्राइसेस. The monthly product is likely to bring certainty to short-term electricity market which is volatile. उसके अलावा भारत बायोटेक 2, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, भारत बायोटेक 2 सप्लाई GSK's malaria vaccine to Gavi in 26. So Bharat Biotech International will start supplying world's first malaria vaccine RTS.S developed by global biopharma major GSK to Vaccine Alliance Gavi from 2026. सो ये वैक्सीन जो है इसका नाम है RTS.S. अब ये हेल्थ सेक्टर में इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा जो कोविड-19 में जो के एरा में जो वैक्सीन डेवलपमेंट हुए थे इस पर भी थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। अब ये जो है ना ये 3 कॉलम क्वेश्चंस में आ सकता है या 2 कॉलम क्वेश्चंस में आ सकता है कि वैक्सीन का नाम दे दिया किस पर्पस के लिए है, ठीक है, ये और किस कंट्री ने डेवलप किया, तो ये 3 कॉलम में इस तरीके से आ सकता है। या 2 कॉलम में दे सकते हैं कि ये वैक्सीन है किस पर्पस के लिए है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप वैक्सीन्स पे भी जो इंडिया ने डेवलप किए हैं स्पेसिफिकली उसके नाम तो आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है, इंडियन एस्पेक्ट में, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो हियर वी एंड आवर एनालिसिस। ये मेरा बारकोड है जिसे आप स्कैन कर सकते हैं, और जिसको भी गाइडेंस चाहिए फॉर UPSC रिलेटेड इनिशियल गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, सो देयर वर 2-3 पीपल हु आर आस्किंग, तो आप इस बारकोड को स्कैन करके और उसके बाद फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे। वहाँ से जो है एक प्रॉपर शेड्यूल दिया जाएगा एंड देन मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा। सो NCERTs कैसे पढ़नी है, किस तरीके से सिलेबस आपको पढ़ना है, किस तरीके से टाइम टेबल मैनेजमेंट करना है, वो आपके
पर्सनल जो डेली स्केड्यूल है, बहुत से लोग होते हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, बहुत से लोग हैं जो कि कॉलेज में हैं, तो उस तरीके से मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोग्राम होगा एंड दिस इज़ फ्री फॉर सम टाइम, ठीक है, ये कुछ समय के लिए फ्री है, लेटर ऑन इसकी फ़ीस भी चार्ज होगी, बट अभी फ़िलहाल ये फ्री है. सो हरी अप, जिनको कनेक्ट करना है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. So here we end our analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.